Good morning, sir. Yes, good morning. Okay, so let us start. Some of the students are not attending the classes. Can anybody tell me what is the reason? Okay, I am sharing you the attendance list, the total attendance list. Sharing with you the attendance list. Just wait for a second. Okay. So there are some of the students like Aman Raza, Aman Kumar Singh, Amul Kumar, Ankur Kumar Thakur. Okay, let me share this with you. Mm, So are you able to see the Excel sheet? Yes, sir. Okay. So here you can see that it is of a computer department. So there are students like this Aman Raza, है ना? Aman Kumar Singh, this Amul Kumar, Ankur Kumar Thakur, this Ishika Singh, Kavita Vats, Kumar Harsh. So where are all these students are? Do you have any idea, anybody of you? No, sir. Tehseen Nawaz. This Tehseen Nawaz. And in ECE, this Asmit Kumar, Sumit Kumar Topo. So they will face problem as they are not attending the classes. They will face problem in terms of marks related to attendance. Okay. So let us proceed. Let me share the whiteboard. So today we are going to study Quine-Maklowski method. So as this method is somewhat lengthy, but we have to do it. So as we have seen that we have solved some of the
functions using K-map, and K-map has some limitation in terms of the visualization of adjacent cells and drawing the drawing a K-map. So for variables greater than 4, that is if there are 5 variables or 6 variables like that. So in the case when there are number of variables greater than 4, in that case it is difficult to show the things or get the combinations in K-map is difficult. Okay, so इसीलिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं जहां पर कि एक अलग तरीके से हम वहां पर भी कॉमन पार्ट ही अलग होता है, बट यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं which has some steps. ओके, सो हम इसे जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो एक प्रॉब्लम भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा 40 मिनट्स में. ओके, सो let us take an example. In this example, I am also taking the 4 variables only. Okay, 4 variables से आपको समझना आसान होगा, 3 variables से भी समझ सकते हैं. Okay, so the question is, you have to simplify f is equal to sigma m 1 2 3 7 8 9 10 11 14 15. Okay, so this is the expression or this is the function, and you have to solve it by using Quine-Maklowski method. So Quine-Maklowski method क्या है, इस मेथड में भी हम क्या करते हैं. अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैंने नहीं बताया है, implicants, prime implicants and essential prime implicants. Okay, so मैं K-map ले रहा हूँ. इस K-map में हमने एक कॉम्बिनेशन, हमने एक वैल्यू लिया ये. ओके, और एक यहाँ भी लेते हैं. ठीक है, 1. नाउ here we have A, B and here it is C. So what are the possible combinations? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So what are the possible combinations? Can anybody tell me? What are the possible combinations? 2 6. Okay, 2 6. 2 3. 2 3. Okay. Next. 0 2. 0 2. 0 2. Okay. And yes. Yes. Next one is what is the next one? What about this 5, box number 5? What about the box number 5? Anybody tell me? Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay.
So what about this box number 5? So it will be alone, क्योंकि ये और किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है. ओके, तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं. इम्प्लीकेंट्स क्या होता है? Okay, so there are implicants, two types of implicants: prime implicant and essential prime implicant. Okay, so we have two types of implicants: prime implicants and essential prime implicants. अब implicants क्या है? जो भी possible combination बनता है, all are the implicants. Okay, what are the prime implicants? तो के मैप को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, all are prime implicants. Okay, मैंने क्या कहा? जो भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं. ओके, सो वी हैव 3 combinations. This combination number 1, this combination number 2, and this combination number 3, and this is the 4th one. Okay, so we have 4 combinations available here, and among all these 4, so all these 4 combinations are known as prime implicants. तो जितने भी combinations हम यहाँ पर देख रहे हैं, all are prime implicants. But what are essential prime implicants? Essential prime implicants are those prime implicants which have one min term which is not included in any other min term. Have you got it? मैंने क्या कहा कि essential prime implicants वैसे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं जो जिनमें कम से कम एक मिन टर्म हो जो कि और किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा हो. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर कितने मिन टर्म्स हमारे पास हैं? सॉरी, कितने प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं? इम्प्लीकेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 और 4. चारों प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं. बट व्हाट आर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स? इनमें से एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन है? जो ये पहला वाला कॉम्बिनेशन बना है. ओके, ये जो पहला वाला कॉम्बिनेशन बना है विथ बॉक्स नंबर 0 और 2 से, सो यहाँ पर इसका जो ये वाला 1 है, this one has been included in combination number 1, 2 and 3, all of them, and box number 0 is included in only one combination. Okay, so this is the first prime implicant. Sorry, this is the first essential prime implicants. Essential prime implicant के बारे में क्या कहा मैंने कि essential prime implicants are those prime implicants in which at least one min term which should not be combined with any other combination. Okay, तो इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन नंबर 1 भी एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, कॉम्बिनेशन नंबर 2 भी एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है. क्यों? क्योंकि बॉक्स नंबर 6 जो है वो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन इस सेकंड कॉम्बिनेशन में ही आया है. ओके, इन द सेम वे कॉम्बिनेशन नंबर 3 में भी आप क्या देख रहे हो कि ये जो कॉम्बिनेशन नंबर 3 है, इस कॉम्बिनेशन नंबर 3 में भी एक 1 ऐसा है जो कि सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में है. सो कॉम्बिनेशन नंबर 3 इज also an essential prime implicant, and this 4 combination number 4 is also an essential prime implicant. So here there are 4 prime implicants as well as 4 essential prime implicants. Okay, so this method is based upon the calculation of these prime implicants. Okay, so I am deleting all these things because we do not need here. So I am deleting this. Do you have any confusion regarding prime implicant and essential prime implicant? No, sir. Okay, so I am proceeding. Okay,
सो यहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ इसे बताने के लिए। सो यहाँ पर हमें सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है कि हमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, स्टेप वन में क्या करना है, हमें जो भी मिन टर्म्स है उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है। ठीक है, सो व्हाट आर द मिन टर्म्स विच वी हैव? मिन टर्म्स है हमारे पास 1 2 3 7 8 9 10 11 14 and 15. okay, so all of these mean terms इनमें जो वेरिएबल्स होंगे वो a b c और d के टर्म्स में होंगे। ठीक है, now we want to represent all these mean terms in binary form. okay, so what we will have or what we are getting here, ये जो मेथड है थोड़ा सा लेंदी है, but you have to study this. So 1 means 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 1 0 1 0 11 1 0 1 1 14 8 और 4 12 14 1 1 1 1. ओके, सो जो पहला काम हमें करना था, सो दीज आर दी वेरिएबल्स. ओके, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में हमें करना है ग्रुपिंग किस हिसाब से करना है कि ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें कि एक भी वन नहीं हो, जिसमें एक वन हो, जिसमें दो वन हो, जिसमें तीन वन हो, जिसमें चार वन हो, इस तरीके से. ठीक है, सो जो सेकंड स्टेप है, स्टेप 2 इज grouping of min terms for different number of ones. ओके, तो हम यहाँ पर अलग अलग कॉलम बनाएंगे कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस, और उससे रिलेटेड मिन टर्म कौन सा है, और वेरिएबल्स क्या क्या है. ठीक है, तो नंबर ऑफ वंस जब हमारे पास, यहाँ पे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें कि एक भी वन नहीं है. सो मिनिमम नंबर ऑफ वन, यहाँ वन, एक वन वाला जो मिन टर्म है वो कौन कौन है. तो एक वन वाला मिन टर्म कौन है? ये वन है, टू है, आई थिंक दो ही है, और कोई मिन टर्म है ऐसा? ओके, एक एट भी है. तो 1 2 8. ठीक है, और इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम लिखेंगे 0 0 1 0 एंड 8 के लिए 1 0 0 0. ओके, तो ये पहला कॉम्बिनेशन बन गया. नाउ वी विल टेक द मिन टर्म्स विच हैव टू वंस. तो दो वंस वाला कौन कौन सा है, बताएंगे मुझे कोई? 3 3 9 9 10. 10 और कोई है? आई थिंक और कोई नहीं. सो 3 हो गया, 0 0 1 1, 9 हो गया, 1 0 0 1, 10 हो गया, 1 0 1 0. ओके, थर्ड कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें कि नंबर ऑफ वंस 3 हो. 3 नंबर ऑफ वंस वाला कौन है? 7 11 14 11 14. 7 हो गया, 0 1 1 1, 11 हो गया, 1 0 1 1, और 14 हो गया, 1 0
सॉरी 1 1 8 7 12 1 1 1 0 और लास्ट एक कॉम्बिनेशन क्या है 4 नंबर 4 जो कि 15 है 1 1 1 1। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में अभी हमें देखना है कि ऐसे दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिनमें कि यानी कि फर्स्ट ग्रुप से इसमें जो ये ग्रुप ये हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2, ये हो गया ग्रुप 3 और ये हो गया ग्रुप 4। अब हम ग्रुप 1 का आगे वाले ग्रुप से कंपैरिजन करेंगे और उनमें देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप से नेक्स्ट वाले ग्रुप में कितने एक नंबर ऑफ एक बिट में कहाँ चेंज है, सिर्फ एक बिट में चेंज कहाँ पर है। ओके, सो नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे यहाँ पर देखेंगे क्या कि any two numbers in these groups which differ from each other by only one variable. Okay, so अभी यहाँ पर 2 cell combination बनाएंगे। Now there is a step 3 where it is 2 cell combination और इस 2 cell combination में हमें क्या देखना है 1 bit position change, यानी कि 1 bit change, 1 bit कहाँ चेंज हो रहा है। तो हम पहले यहाँ 2 cell combination में कॉम्बिनेशन कौन बन रहा है वो देख लेते हैं। ओके, और वेरिएबल्स जो होंगे वो हम लिखते हैं A, B, C and D। नाउ द कॉम्बिनेशन जिसमें कि एक बिट का डिफरेंस आ रहा हो। ओके, तो हमें क्या करना है ग्रुप 1 पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन करना है। ठीक, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि एक बिट के पोजीशन में चेंज आ रहा हो। तो हम क्या करें पहले इस यानी कि फर्स्ट वाले ग्रुप में 1, 2 और 8 है, तो पहले हम क्या करेंगे 1 का कंपैरिजन बाकी के नेक्स्ट ग्रुप के मेंबर्स के साथ करेंगे। तो 1 का कंपैरिजन अगर 3 के साथ करें 1 का कंपैरिजन अगर 3 के साथ करें तो हम क्या देख रहे हैं कौन से बिट पोजीशन में डिफरेंस है 1 और 3 में A, B, C। तो C में हम देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा बाकी का सारा बिट पोजीशंस मतलब A, B और D सेम है, सिर्फ C में डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे जहां पर बिट पोजीशन में डिफरेंस आएगा वहां पर डैश पुट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो किसका बनाएंगे 1 3 का। ठीक, यानी कि पहले हम फर्स्ट ग्रुप से कंपैरिजन कर रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप के साथ। ठीक है, तो 1 और 3 का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 0 0 यहाँ पर चेंज आ रहा है तो वहां डैश लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, अब 1 का किसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं 1 का 9 के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या 1 का 9 के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? केवल एक बिट में डिफरेंस है क्या? Yes, sir. यस, क्योंकि यस सर सिर्फ बिट पोजीशन A पर डिफरेंस है, BCD सेम है, तो 1 और 9 का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 और 9 लिख लें। हम पहले सारा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं उसके बाद बाइनरी लिखेंगे। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्या? 1 और 10 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं क्योंकि A भी डिफरेंट है, नहीं सर, C भी डिफरेंट है, D भी डिफरेंट और है, सी भी डिफरेंट है। यस 3 बिट का डिफरेंस आएगा। अब हम चले जाएंगे तो ग्रुप 2 का काम हो गया। अब हम ग्रुप 3 में कंपैरिजन करेंगे तो 1 और 7 का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? No, sir. नहीं कर सकते हैं। No, 111 का नो सर, 111 का नहीं कर सकते हैं। 114 का नहीं कर सकते हैं, 115 का भी नहीं कर नो सकते। सर, ठीक है, तो हमने 1 का कंपैरिजन जब किया तो 1 का काम खत्म हो गया। अब 1 का कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कंपेयरिंग। जो पहले यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लें तो 1 और 9 के लिए कहाँ बिट पोजीशन में चेंज आ रहा है? A में चेंज आ रहा है, B, C और D सेम है। ठीक है, तो 1 का काम खत्म हो गया। नाउ वी विल गो फॉर 2। अब इस 2 से कंपैरिजन करेंगे
आगे के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ, इसी ग्रुप के साथ नहीं, नेक्स्ट ग्रुप के साथ। तो 2 का कंपैरिजन 3 के साथ पॉसिबल है क्या? यस सर। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो 2 और 3 होगा। Yes, sir. सो वी कैन राइट हियर 2 3। 2 का कंपैरिजन और किसके साथ पॉसिबल है? 9 के साथ है पॉसिबल 2 का? No, sir. नहीं है पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारा बिट में डिफरेंस है। नो सिर्फ एक बिट में डिफरेंस आना चाहिए। 2 और 10 का पॉसिबल है? 2 और 10 का Yes, पॉसिबल है ना? तो 2 Yes, sir. 2 10। सो 2 10। नेक्स्ट 2 7। दूसरा ग्रुप खत्म हो गया। 2 7 का करेंगे। 2 7 का पॉसिबल नहीं No, है। sir. 2 11 का भी पॉसिबल नहीं है। 2 14 का भी पॉसिबल नहीं है। 2 15 का भी पॉसिबल नहीं है। तो 2 का भी काम खत्म हो गया। ओके, सो 2 का काम खत्म। नाउ अब 8 का कंपैरिजन करेंगे 3 के साथ। 8 का कंपैरिजन 3 के साथ करें, होगा क्या? 8 का No, sir. कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 बिट में डिफरेंस आ रहा है। सो 8 का 9 से करें, होगा? हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो 8 और 9 होगा। ओके, 2 वाला हम लिख लेते हैं। 2 और 3 के बीच में कहाँ कंपैरिजन आएगा? 0 0 1, यहाँ डिफरेंस आएगा। और 2 और 10 में कहाँ डिफरेंस आएगा? यहाँ डिफरेंस आएगा। ओके, अब 8 और 9 देखे हैं। 8 का और किसके साथ कंपैरिजन पॉसिबल है? 8 का 10 के साथ। इज इट पॉसिबल? Yes, sir. यस। Yes, sir. 8 का 10 के साथ हो सकता है, तो 8 और 10 का हो सकता है। तो इन द सेम वे 8 और 9 का कहाँ होगा पॉसिबिलिटी? ये 1 होगा, 0 0 यहाँ पर चेंज आएगा 8 और 9 में। 8 और 10 में कहाँ चेंज आएगा? यहाँ चेंज आएगा, इजंट इट? तो 8 का भी आई थिंक काम हो गया। अब 8 का और कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। आप देख लो, 8 का 7 से कंपैरिजन होगा? नहीं होगा। 8 का 11 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा। ओके, इन द सेम वे वी विल प्रोसीड फॉर 3 9 एंड 10 के लिए। ठीक है, तो पहला ग्रुप जो था उसका काम खत्म हो गया। पहले ग्रुप का ये खत्म हो गया। सो ये ग्रुप 1 बना। अब ग्रुप 2 में हम क्या करेंगे? ग्रुप 2 में सिमिलरली हम कंपेयर करेंगे सेकेंड ग्रुप से 3 और 4th ग्रुप का। तो 3 का कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट ग्रुप के साथ। आई एम राइटिंग इट, आप लोग बाद में इसे मिला लोगे। ठीक है, मैं इसे लिख ले रहा हूँ। सो 3 का 7 के साथ पॉसिबल Yes, है। sir. ओके, 3 का 11 के साथ पॉसिबल है। 3 11, देन 9 11, देन 10 11, देन 10 14। ओके, मैं ये कॉम्बिनेशन लिख लेता हूँ। 3 और 7 में कहाँ डिफरेंस आएगा? दिस इज 0 डैश 1 1। 3 और 11 में यहाँ आएगा। नाइन 11 में कहाँ आएगा? यहाँ होगा, यहाँ आएगा। 10 11 में कहाँ आएगा? टेन 11 में कौन सी पोजीशन में डिफरेंस आएगा? 8 और 2 10 और 11 में यहाँ डिफरेंस नहीं आएगा। लास्ट टर्म में आएगा सर। यहाँ डिफरेंस आएगा। और 10 14 में कहाँ आएगा? 10 यहाँ आएगा। ओके, इन दिस वे वी आर ओके। सो अभी हमने जो कंपैरिजन देखा वो कहाँ तक? 3 से कंपैरिजन किया हमने 14 तक। 3 का भी हो गया, 9 का भी हो गया, 10 का भी हो गया। तो अभी हमारे पास ये लास्ट ग्रुप का कंपैरिजन बाकी है।
तो 3 का कर लिया हमने, 9 का कर लिया, 10 का कंपैरिजन कर लिया नेक्स्ट ग्रुप के साथ। अब 7 का करना होगा 15 के साथ, 11 15 के साथ, 14 15 के साथ। ओके, तो इन तीनों के साथ कंपैरिजन पॉसिबल है आई थिंक, क्योंकि हर एक में एक Yes, sir. डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 7 15, 11 15 और 14 15, तो एक ग्रुप और बनेगा यहाँ पर। ये हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2, अभी एक ग्रुप 3 और बनेगा। तो यहाँ पर फिर से हमें लिखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, ओके, और वेरिएबल्स। कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, 7 15 और क्या क्या था, 11 15 14 15, 11 15 और 14 15। ओके, सो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, डैश 1 1 1 11, 11 में कहाँ होता है 0, 1 डैश 1 1, और 14 15 में कहाँ होता है 1 1 1 डैश। ओके, सो इस तरीके से ये एक नया कॉम्बिनेशन बना। तो अभी जो कॉम्बिनेशन बनाया गया 2 सेल कॉम्बिनेशन, टू सेल कॉम्बिनेशन मतलब 1 बिट चेंज, एक बिट में जहाँ चेंज आ रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जहाँ की 2 बिट में चेंज आए। ओके, बट दिमाग में ये बात रखनी है कि जो डैश का पोजीशन है वो सेम हो। ओके, जैसा कि लेट अस सी, तो अभी यहाँ पर स्टेप 3 था, नाउ वी हैव स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होगा, वी विल हैव 4 सेल कॉम्बिनेशन। अब ये जब 4 सेल कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ पर डैश का जो पोजीशन है फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में जो डैश का पोजीशन है उनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उनमें कहाँ बिट पोजीशन में चेंज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशंस में से एक वेरिएबल में चेंज आएगा, बट माइंड में क्या ध्यान रखना है कि डैश का जो पोजीशन है वो सेम रहे। ओके, नाउ वी आर मेकिंग द कॉम्बिनेशन। एंड वेरिएबल्स, तो यहाँ पर 2 बातें, 4 सेल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा विथ सेम, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं ताकि ध्यान रहे, सेम डैश पोजीशन एंड 1 बिट चेंज। अब 4 सेल कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास 2 सेल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो अब नेक्स्ट जो कंपैरिजन करेंगे वो इस सेल का इस सेल के साथ करेंगे, तो क्या हो गया, ये 4 सेल कॉम्बिनेशन हो गया इस बार। तो हम देखें कि डैश पोजीशन यही रहना चाहिए, यानी कि 3rd बिट पोजीशन पे। तो 3rd बिट पोजीशन पे डैश पोजीशन कहाँ है, 9 11 का है। तो इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल है क्या, एक अब इस डैश का पोजीशन जब सेम कर लिए तो हम देखेंगे कि क्या एक बिट में और चेंज आ रहा है। यस सर, एक बिट है। में आप देखो यहाँ पर चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 3 का 9 11 के साथ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सो 1 3 एंड 9 11, सो हम इसे 1 3 9 11 एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर बिट पोजीशन में चेंज कहाँ है, ए पोजीशन में चेंज है, और यहाँ 0 है, यहाँ डैश है और यहाँ 1 है। ओके, तो डैश का पोजीशन इस बार हमें सेम रखना है। नाउ अब हम देखें 1 3 का क्या और किसी कहीं से पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन बनने का, इस बिट ये डैश पोजीशन और कहीं पर है, सी में डैश पोजीशन है कहीं और कहीं नहीं है। तो 1 3 का कॉम्बिनेशन हो गया ओवर। अब 1 9 से कंपैरिजन करेंगे, डैश पोजीशन यहाँ पर कहाँ है, तो 3 11 का सर। यहाँ पर है 3 11 का। क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कंपैरिजन, यस सर। एक बिट पोजीशन में चेंज यहाँ पर है सी पर। ओके, सो 1 9 का 3 7 सॉरी कहाँ से 3 11 से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 1 9 3 11, तो ऑलरेडी आप यहाँ पर देख रहे होगे 1 9 3 11 हमारे पास
जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वही सेम चीज हमें यहाँ भी दिख रहा है 1 3 9 11। तो आई थिंक बोथ ऑफ दीज आर सेम, बट हम फिर से लिख लेते हैं 1 9 और 3 11। सो 1 9 3 11। आप देखोगे कि एक ही बिट पोजीशन पर चेंज आएगा। आप क्या देख रहे हैं 1 9 का 3 11 के साथ। तो कहाँ बिट पोजीशन सेम है? डैश फर्स्ट वाला है और उसके बाद क्या है? 0 है, उसके बाद डैश होगा और 1 होगा। 0 होगा, डैश होगा और 1 होगा। तो आप क्या देख रहे हो? दोनों ही जगह से हमें सेम ही चीज मिल रहा है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना? इसीलिए हम इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, लेट अस मूव फर्दर। अब 1 9 का कंपैरिजन 3 11 से तो पॉसिबल हुआ। अब डैश पोजीशन फिर से देख लें 1 9 9 11। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? अच्छा नहीं हुआ। एक मिनट, इसे यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। ओके, नाउ तो कॉम्बिनेशन इज 1 9 और 9 11 है। तो डैश पोजीशन सेम तो है नहीं, हमें डैश पोजीशन देखना है कि यहाँ पर डैश पोजीशन होना चाहिए। तो 1 9 का और कहीं और कहाँ से पॉसिबिलिटी है? 7 15। नहीं 7 15 से होगा। डैश पोजीशन तो सेम है लेकिन बिट पोजीशन एक से ज्यादा चेंज है। तो Yes. आई थिंक 1 9 का भी काम खत्म हो गया। अब 2 3 के साथ कंपैरिजन देखेंगे। 2 3 में डैश पोजीशन डी पर है। तो डैश पोजीशन डी पर कहाँ है? 10 11 पर। और कौन से बिट पोजीशन में चेंज है? ए में चेंज है। ओके, First तो position. 2 3 10 11 वी कैन राइट 2 3 10 11। ओके, कितना टाइम बच रहा है? 2 मिनट्स। 2 3 10 11 कहाँ है? 2 3 10 11 कहाँ गया? सो 2 3 10 11 के लिए हमारे पास जो डैश पोजीशन आएगा वो ए पर आएगा, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद डैश होगा। ओके, इसी तरीके से हम आगे कंपैरिजन जब करेंगे तो 2 3 का और कोई कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलेगा। फिर 2 10 का ए पे डैश पोजीशन 3 11 है, लेकिन यानी 2 10 3 11। तो 2 10 3 11 आप यहाँ पर देख रहे हो, ऑलरेडी हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ चुका है 2 3 10 11। Yes, sir. ठीक है, सो 2 3 का और कहाँ देखें? और कहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल होगा। No, sir. ठीक है, अब 2 10 का देखें। 2 10 का हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा अभी। 2 3 10 यहाँ नहीं होगा। ठीक है, और आगे नहीं होगा। ठीक है, अब 8 9 का होगा। 8 9 देखें तो 8 9 के लिए डैश पोजीशन डी पर है, तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनेगा 8 9 10 11। 8 9 10 10 11 11. डैश पोजीशन यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ डैश होगा और यहाँ डैश होगा। ठीक है, तो 8 9 हो गया। अब 8 10 का जो फिर से देखेंगे तो हमें फिर से 8 10 9 11 मिलेगा, जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यही 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। नाउ वी हैव 1 मिनट। मैं यहाँ पर ओके, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अदरवाइज मुझे फिर से लिखना होगा सारा। ओके, सो प्लीज रीजॉइन अगेन।